Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 4th October 2020. So let us see which are the important articles. Largely the articles are related to your prelims examination. So we have directly enlisted them for your prelims examination and the page number on which the article has appeared. So let us see one by one all these articles. First of all, we will see some important articles which are related to COVID-19. On page number, let's say page number 12, science related जो होता है पेज नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और उसके बाद का जो FAQ पेज होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं एंड सम नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. सो यस, so the article is talking about warm COVID-19 vaccine. So at present we know the basic information of any vaccine that needs to be stored as a cold storage at let's say 7 to 8 degrees Celsius temperature or 2 to 8 degrees Celsius temperature. Okay, so unlike drugs, virtually all vaccine needs to be supported or transported and at cold temperature prior to use. This is very important. अगर ये नहीं किया तो क्या होता है कि वैक्सीन का पोटेंसी कम हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. सो हम देखते हैं ना कि पोलियो वायरस का जो होता है, जो वैक्सीन देने के लिए आते हैं वो कोल्ड स्टोरेज का डब्बा होता है, उसमें से वो वैक्सीन निकाल के देते हैं, राइट. तो बेसिकली अभी कोविड-19 के भी सारे जो वैक्सीन फॉर्मुलेशंस हो रहे हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स जो है वो सारे कोल्ड स्टोरेज के लिए उनके लिए कोल्ड स्टोरेज लगेगा. सो इतना लार्ज स्केल कोल्ड स्टोरेज अवेलेबिलिटी अभी हमारे कंट्री में भी नहीं है और जैसे बाकी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज में भी नहीं है. सो कैन वी डेवलप सच काइंड ऑफ वैक्सीन विच विल बी लेट्स से पोटेंट एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो. ठीक है, तो ऐसा कोई डेवलपमेंट हो रहेगा. तो यस, इन इंडिया इटसेल्फ group of let's say expert are trying to develop such kind of methodology here. Okay, so what happens is if they are exposed to higher temperature, such kind of vaccines, many vaccines lose their potency and recooling does not help. So that's why we need to have cold chain for handling them. So it would be therefore extremely useful if we make and transport a vaccine at room temperature with no cold chain needed. ठीक है, तो इट इज टुवर्ड्स सच ए वार्म वैक्सीन दैट द इंडियन ग्रुप लेड बाय राघवन वरदराजन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc Bangalore and other collaboration at IISER Trivandrum. The group decided to synthesize in a laboratory not the full length of spike protein. स्पाइक प्रोटीन जो हमने कोविड-19 का जो स्ट्रक्चर देखा था, तो 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं वायरस के ऊपर, ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर. तो उसमें से स्पाइक प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अटैचेस इटसेल्फ टू द होस्ट सेल. सो उसमें से पूरा वो उन्होंने लेंथ नहीं तो फुल लेंथ स्पाइक प्रोटीन नहीं तो 200 अमीनो एसिड का एक फ्रैगमेंट उसमें से लिया जिसको बोला जाता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन. ठीक है, तो फुल लेंथ जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा. सो दिस स्पाइक प्रोटीन विच इज अबाउट 1300 अमीनो एसिड लॉन्ग. In that the sequence that is about 250 amino acid long called receptor binding domain attaches itself to host cell. तो सिर्फ उतना ही important है हमारे लिए receptor binding domain. ठीक है, 200 to 250 acid amino acid fragment of that spike protein, उसको स्टडी किया जा रहा है. स्टडी इट्स स्ट्रक्चर एंड थर्मल स्टेबिलिटी. ओके, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी वो स्टडी की बताई गई है. However, after studying this structure and thermal stability of this particular spike protein in that particular RBD area, receptor binding domain, it is found that it is very let's say thermally stable at room temperature. Okay, so unlike all COVID-19 vaccine formulations currently in clinical trials which require cold chain, this particular thermotolerant RBD fragment can be stored at room temperature for extended periods. So this is very good development. At present it is at research level. More research is required for let's say more trials are required for this technology. So we can say that ये हम बोल सकते हैं कि warm COVID-19 वैक्सीन के लिए ये डेवलपमेंट है. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, the revised guidelines on ideal weight and diet. Yes, this is also important article when we talk about health and nutrition, let's say
related facts for your prelims examination as well as essay related to health and nutrition. So recently National Institute of Nutrition NIN Hyderabad based premier research body of ICMR, ठीक है, has released new set of guidelines updating norms on recommended dietary allowance RDA, which is the average daily intake needed for nutritious diet. So earlier also there was there were standards regarding this diet, उनको update किया गया है, ठीक है. So earlier reference weights for men and women was fixed at 60 kg and 50 kg respectively. Now this definition for reference of Indian adult and men and women were modified with regard to the age, ठीक है, instead of ये earlier age था, and the body weight of 65 kg and 55 kg for men and women respectively, fixed for normal BMI, ठीक है. तो ये 60 का 65 हुआ है men के लिए, 50 का 55 हुआ है women के लिए, ठीक है. चेंज. Reference weights are proxy for nutritional status of people of the country in that particular age group. इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए तो हमारा जो एवरेज इंडियन का एक वेट होता है दैट इज लाइटर देन हिज और हर काउंटर पार्ट ग्लोबली. तो यू कैन सी द एग्जांपल लाइक डच मेल, एवरेज वेट ऑफ डच मेल इज 87.4 kg और विमेन का 72.3 kg होता है इस एज ग्रुप में. या फिर अगर यूके का लिया जाए तो 86.8 है और 72.5. तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में एवरेज वेट जो होता है मेन एंड वुमेन का वो कम होता है काफ़ी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल. सो दैट्स वाई वी नीड टू लेट्स से इम्प्रूव दैट एस्पेक्ट. तो ये बेंचमार्क बढ़ाया गया है 65 करके और 55 करके. फाइन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. देन अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑन फर्स्ट पेज. Yes, world's longest highway tunnel opened in Himachal Pradesh. Yes, recently our Prime Minister inaugurated on Saturday यानी कि 3rd October को Atal Tunnel at Rohtang Pass at altitude of about 3000 meter in Himachal Pradesh. Sorry. After the inauguration, he said that tunnel would provide new strength to the country's border infrastructure. This is 9.02 kilometer long tunnel, the longest let's say highway tunnel built by BRO, Border Roads Organization, okay, and it connects Manali to Lahul Spiti Valley. तो इसके बारे में हमने पहले भी देखा है, मैप वगैरह ड्रॉ करके हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. नाउ इट इज़ इनॉग्रेटेड. ये बहुत दिनों से न्यूज़ में था कि ये इनॉग्रेट होने वाला है. सो दैट्स वाई वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव. ये मनाली से लाहौल स्पीति जो है रोहतंग पास कनेक्ट करता है, ठीक है, मनाली टू लाहौल स्पीति. एंड वी हैड डिस्कस दैट यस मनाली और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है साउदर्न साइड में हिमाचल प्रदेश के, दे हैव हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन and Lahul Spiti Valley is having let's say Buddhist population along with Leh Ladakh region जो ऊपर से होता है, ठीक है. तो इसके बीच में कनेक्ट करने वाला होता है रोहतंग पास और लाहौल स्पीति देन कनेक्ट्स विथ लेह लद्दाख थ्रू बारालाचला पास, ठीक है. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी से आपको पता होनी चाहिए. इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू दिस लैंडलॉक्ड वैली लाहौल स्पीति वैली which remains cut off nearly 6 months in a year at Rohtang Pass is now snowbound between November to April. ये बंद रहता है 6 महीने के लिए, ठीक है, रोहतांग पास जो है. सो इसलिए जो है दिस टनल विल प्रोवाइड द ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू दिस लाहौल स्पीति वैली. At the same time, it reduces the distance between Manali and Leh by 46 km and travel time by about 4 to 5 km. So this is very important. It will boost tourism and winter sports in the region. At the same time, military logistic viewpoint से भी बहुत important है for connectivity. अभी हमने देखा था कि recent India China standoff is going on along LAC and for that purpose this is also very important. तो ये जो फास्ट ट्रैकिंग गवर्नमेंट ने किया हुआ है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, शेप कैसा है, हॉर्स शू शेप है, ठीक है, लेंथ है 9.02 किलोमीटर, लोकेटेड बिलो द रोहतांग पास,
ठीक है, तो एग्जैक्टली रोहतांग पास के ऊपर नहीं है, तो थोड़ा सा साइड में है वो, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल विथ डिस्टेंस रिड्यूस 46, टाइम रिड्यूस्ड 5 आवर्स, altitude 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल। यस, सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, मैक्सिमम व्हीकल स्पीड अलाउड इज 80 किलोमीटर पर आवर, टेलीफोनिक फैसिलिटी है एट एवरी 150 मीटर, फायर हाइड्रेंट्स है, इमरजेंसी एग्जिट्स है, टर्निंग कैबिन, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स, सीसीटीवी कैमरास, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ये प्रोजेक्ट जो है, द फाउंडेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज लेड इन 2002 बाय Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister of India, and now it is completed in 2020. Okay, so this is the basic information for prelims purpose. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको अटल टनल पे ऊपर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे, यस, सॉरी हाईवे टनल, इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति, यस, इट इज लोकेटेड बिलो बारालाचाला पास, इनकरेक्ट, बारालाचाला तो उसके आगे है, विच कनेक्ट्स दिस लाहौल स्पीति टू लेह लद्दाख, रादर इट इज लोकेटेड बिलो रोहतांग पास, ठीक है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, 1 and 2, फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, यस, a very good study done on mangrove forest near Hooghly river in West Bengal. So yes, Punarvasu Chowdhury, mangrove ecologist of University of Kolkata, so his recent paper suggests that mangroves have started moving upstream, growing in less saline regions. तो उन्होंने स्टडी किया है at the bank of river Hooghly, they have found inside the Kolkata city this such kind of upstream movement of these mangrove forests, ठीक है। तो mangrove forest we know that needs saline water, ठीक है। तो ये less saline region में कैसे grow हो रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। causing factors, sewage disposal has increased the pollution load in the river, rate of sedimentation, quality of sediment, biogeochemistry of river has been affected through various anthropogenic activities like this, rapid mean sea level rise at global level, construction of Farakka barrage in 75 has changed the ecology and chemistry of the river। कौन सी रिवर है ये, हुगली रिवर है। तो फराक्का बैरेज से जो पानी डाइवर्ट किया गया है गंगा रिवर का हुगली रिवर में, वेस्ट बंगाल में, उसकी वजह से भी इसका इकोलॉजी और केमिस्ट्री चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई बायो जियो केमिस्ट्री चेंजेस। स्टडी हैज आल्सो फाउंड दैट हाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दो टाइप के ऑक्सीजन डिमांड होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिकॉज ऑफ लेट्स से ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, algae एंड दोज लिविंग इन द इकोलॉजी, रिवर इकोलॉजी और रिवर इकोसिस्टम, and chemical oxygen demand, a chemical oxygen demand because of increased let's say chemical activities in the water and that consuming more and more oxygen because of that. River because of increased release of harmful chemicals from multiple point and non point sources, ठीक है। तो impact क्या होगा, this shows that potential of Sonneteria, तो ये जो variety जो है Sonneteria, this is the variety of mangrove forest, tree variety है, सो वो पाई गई है यहाँ पर। सो एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ रीजनल एनवायरमेंट चेंजेस, डायरेक्टली इंडिकेटिंग चेंजेस इन माइक्रो एनवायरमेंट। सेकंड, डिक्लाइन इन मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया along with the changes or the migration may increase the amplitude of coastal hazards such as storm surges, erosion and flooding, ठीक है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट उसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल हजार्ड्स लाइक स्टॉर्म सर्जेस, सुनामी वेव्स, इरोजन होता है, कोस्टल इरोजन, उससे अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है मैनग्रोव फॉरेस्ट से। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स से इकोसिस्टम जो मैनग्रोव्स वाला जो होता है। फाइन, एट द सेम टाइम इट सपोर्ट्स ह्यूज लेट्स से बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। हम देखते हैं सुंदरबंस में, सुंदरबन फॉरेस्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट for keystone species like Bengal royal tiger,
ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट द मैनग्रूव्स आर माइग्रेटिंग अपस्ट्रीम इन द लेस सलाइन रीजन्स लाइक हुगली रिवर. नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट ट्री फाउंड आफ्टर 180 ईयर्स इन कोल्लम ग्रो. तो कोल्लम जो रीजन है केरला का, वहाँ पे जो ट्री वैरायटी है एक, इस फोटो में दिखाई दे रहा है आपको. सो दिस इज मधुका डिप्लोस्टेमन. ठीक है, तो डिप्लोस्टेमन, सॉरी, मधुका डिप्लोस्टेमन. तो ये जो ट्री वैरायटी है, दिस वाज फर्स्ट information about it was collected in 1835, and after that it is rediscovered after the gap of more than 180 years. So this is part of Sacred Groves in Kollam district. तो यहाँ पे एक ही अभी ये ट्री स्पेसी मिला है, देखने को मिला है. मैच्योर ट्री वॉज लोकेटेड एट कुन्नुयल शिव टेम्पल एट परावूर कोल्लम. ठीक है, तो ये जो अभी मिला है स्पेसीज, सिंस द स्पेसीज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन स्पेसिमन इन अ सिंगल लोकेलिटी, it is eligible to be categorized now as critically endangered by IUCN, International Union for Conservation of Nature. ठीक है, तो आपको वैरायटी का नाम मधुका डिस्प्लोस्टेम ये पता होना चाहिए, एंड रीडिस्कवर्ड इन कोल्लम. तो कुछ वैरायटीज जो होती है बहुत सालों के बाद मिलते हैं फ्लोरा एंड फाउना के, वो न्यूज़ में रहते हैं, तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, प्लान टू बिल्ड टेम्पररी bird shelter near Sambar Lake. Now the winter is coming, we know that there will be migratory birds coming to India from the Siberian region. So especially Sambar Lake is famous for that. तो उसके बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानते हैं. सांबर लेक इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, located 80 kilometers southwest of Jaipur city. The lake receives water from 5 rivers: Metta, Samod, Mantha, Rupangar, Khari and Khandela. Basically it is surrounded by Aravalli hills from all sides, so that's why centripetal drainage या फिर इसको playa lakes भी बोलते हैं. Fine, so it has been designated as Ramsar site because of, let's say, very internationally important wetland, that it has, let's say, a key wintering area for tens of thousands of birds, pink flamingos and other birds that migrate from northern Asia and Siberia region. ठीक है, तो उनके लिए अभी राजस्थान गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रहा है कि टेम्पररी शेल्टर्स तैयार किए जाएंगे फॉर दीज माइग्रेटरी बर्ड्स नियर सांबर लेक. सो लार्ज नंबर ऑफ दीज गेट्स फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया आर एक्सपेक्टेड टू अराइव in the country's largest inland saline water body. So इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि more than 20,000 migratory birds died due to avian botulism. ये डिसीज है in the lake last year. तो यहाँ पे पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों मर रहे हैं, बट because of this disease avian botulism they died near Sambar Lake. And Rajasthan High Court has taken suo motu cognizance of this mass death phenomenon and constituted 7-member expert committee to study the impact of salt forming and identify any illegal salt mining in the lake. ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए. एवियन बोटुलिज्म इसी साल एक्सपेक्टेड था, बट वो क्वेश्चन नहीं आया है इसके रिगार्डिंग. But yes, we can expect next year. And about Sambar Lake, basic information. Fine. Next article, US Navy's maritime patrol aircraft refuels at Port Blair. Now this is for the first time that US got access to Andaman and Nicobar under LEMOA, Logistic Exchange Memorandum of Agreement, signed in 2016. ठीक है, तो ये यूएस नेवी का P-8A लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है, MPA. सो दैट लैंडेड एट पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान निकोबार फॉर रीफ्यूलिंग पर्पस. ठीक है, इन जुलाई फ्रंटलाइन वॉरशिप्स ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेक्स. ये बैकग्राउंड आपको पता है, हमने पहले भी कवर किया हुआ है. पासिंग एक्सरसाइज बोला जाता है, पासेक्स. इट वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवीज निमित्ज कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर
so near Andaman and Nicobar, which are strategically located near Strait of Malacca. So this USS Nimitz was returning from South China Sea through Malacca Strait, where it undertook freedom of navigation operation. तो ये हर साल US वहाँ पे कंडक्ट करता है साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस. तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन. ठीक है, तो वो यूएस कंडक्ट करता है साउथ चाइना सी में. फाइन. देयर हैज बीन ए शार्प इंक्रीज इन इंडियाज मैरीटाइम इंटरेक्शंस विद क्वाड कंट्रीज ऑन बायलैटरल बेसिस. ठीक है, बायलैटरल बेसिस पे काफ़ी बड़ा हुआ है, बट हमने मालाबार जो है अभी तक उसमें ऑस्ट्रेलिया को इंडक्ट करने का डिसीजन फाइनल लिया नहीं है. ठीक है, तो वो क्वाड्रिलैटरल लेवल पे मिलिटराइज होगा. बायलैटरल पे पहले से हो रहा है on the basis of, let's say, improved maritime domain awareness in the Indian Ocean and Indo-Pacific. India has logistic agreements with all three countries, Australia, Japan and US. At the same time, maritime information sharing agreements with Australia and Japan and a similar agreement in works with US. ठीक है, तो bilateral level पे काफ़ी militarize हो रहा है agreements, but quadrilateral level पे नहीं है. At the same time, recently exercise Bongo Sagar is going on in the Bay of Bengal. Indian Navy and Bangladesh Navy. So navies of these two countries are undertaking this exercise Bongo Sagar. ठीक है, तो bilateral second edition of this bilateral naval exercise between India and Bangladesh. ठीक है, Bay of Bengal में हो रहा है, followed by coordinated patrol (CORPAT) for the next 2 days. सो एक्सरसाइज ये जो है फर्स्ट एडिशन 2019 में था. इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स थ्रू कंडक्ट ऑफ वाइड variety of exercises. The ships from both navies will participate in surface warfare drills, seamanship evolution, helicopter operations. इंडिया की तरफ से कौन से हैं? INS किल्तन एंड INS खुकरी फॉर दिस एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बोंगो सागर क्या है. बोंगो सागर इज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. फाइन. सो दिस वाज द सेकंड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज. 2019 में ये शुरू हुआ था. फाइन, फर्स्ट एडिशन. तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट एक्सरसाइज बोंगो सागर, सेकंड लेमोआ जो एग्रीमेंट है उसके अंडर अभी फर्स्ट टाइम ये अलाउ किया है रिफ्यूलिंग के लिए, और थर्ड आपको पता होना चाहिए पासेक्स पासिंग एक्सरसाइज किया हुआ था. फाइन. और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि बायलैटरली हाउ वी आर मिलिटराइज हैविंग मिलिट्री लेवल, लेट्स से डिफेंस लेवल इंटरेक्शंस विद दिस क्वाड कंट्रीज. फाइन. यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. यस, फ्रेंच पैसिफिक आउटपोस्ट डिसाइड्स ऑन इंडिपेंडेंस. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे प्रीलिम्स के लिए. सो देर इज फ्रेंच साउथ पैसिफिक टेरिटरी नेम्ड न्यू कैलिडोनिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ पे वो टेरिटरी है साउदर्न पैसिफिक ओशन में. इट वोट्स फॉर रेफरेंडम फॉर सेकंड टाइम. इट विल बी सेकंड टाइम दैट आर्चिपेलागो गोज टू पोल्स टू डिसाइड इट्स फेट इन 2 years. ठीक है, फर्स्ट रेफरेंडम 2018 में हुआ था, बट उसमें मेजॉरिटी नहीं था. 56.7% ही फेवर में वोट था. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेफरेंडम इज द पार्ट ऑफ केयरफुली निगोशिएटेड डीकोलोनाइजेशन प्लान एग्रीड इन 1998 नोन एज नाउमो अकॉर्ड. ठीक है, तो वहाँ पे दो ग्रुप्स में प्रो इंडिपेंडेंस इंडिजीनियस कनाक पॉपुलेशन है. ठीक है, एंड डिसेंडेंट्स ऑफ यूरोपियन सेटलर्स नोन एज कैल्डोचस. तो ये इतना डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी नीड टू नो दैट दिस इज फ्रेंच साउथ पैसिफिक टेरिटरी. ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप मार्किंग के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट है. अदर सच फ्रेंच टेरिटरीज कहाँ है? रीयूनियन आइलैंड्स, मायोटे, फ्रेंच साउदर्न एंड अटलांटिक लैंड्स इंडियन ओशन में है लोकेटेड. सेकंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, वॉलिस एंड फुटाना, ये पैसिफिक ओशन में है. एंड अटलांटिक ओशन में कौन से है? जनरली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है ये सारे. ठीक है, तो मार्टिक, सेंट मार्टिन, सेंट बार्थलेमी, सेंट पीर एंड मैकलिन. ठीक है, तो ये जो लोकेशंस है हम इस तरीके से मैप पे भी देख सकते हैं.
कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आपको जो अभी हमने देखा था रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में, मायोटे, ये एक्चुअली मादागास्कर के दोनों साइड में है। ठीक है, दिस इज मादागास्कर, दिस इज न्यू कैलिडोनिया। नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है, साउदर्न पैसिफिक लोकेशन, वालिस एंड फुटाना अदर सच लोकेशंस इन साउदर्न पैसिफिक। तो द रेफरेंडम इज गोइंग ऑन इन दिस न्यू कैलिडोनिया टेरिटरी। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में आपको दिख रहा है मैरिटिंक या फ्रेंच गियाना, जो हम साउथ अमेरिका में जो लोकेटेड है। फिर उसके बाद में सेंट पियर एंड मैक्विलिन यहाँ पे है। ठीक है, और फ्रेंच पॉलिनेशिया जो है अगेन इट इज़ लोकेटेड इन साउदर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको पता होने चाहिए। उसके ऊपर इस तरीके से वर्ल्ड मैप मार्किंग पे क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन हर साल अभी आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस साल भी उन्होंने पेयर्स पूछे हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ है। तो सॉरी, जो 4 अक्टूबर यानी कि आज ही जो एग्ज़ाम हुआ है, ये वीडियो जो है वो दूसरे दिन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम टाइप का क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। यहाँ पे रिवर दी गई है और इनटू विच ओशन इट ड्रेन्स। ठीक है, तो आपको मैप मार्किंग के लिए ऐसे मैपिंग के क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड फ्रेंच पोलिनेशिया जो है अटलांटिक ओशन में नहीं है, दिस इज इन पैसिफिक ओशन, साउदर्न पैसिफिक। ठीक है, न्यू कैलिडोनिया पैसिफिक ओशन, यस दिस इज करेक्टली मैच्ड। रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है, यस। सो ओनली वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटिश के कौन से टेरिटरीज है, लाइक चागोज आइलैंड जो है अभी न्यूज़ में रहता है, यूके की टेरिटरी इंडियन ओशन में है। तो ऐसे कहाँ कहाँ उनके टेरिटरीज है वो भी आपको पता होने चाहिए। फाइन। एंड लास्टली important article in science, yes, century old data helps measure sun's magnetic field. So what the article is talking about, yes, so कोडाई कैनल में एक ऑब्जर्वेटरी है, सोलर ऑब्जर्वेटरी, वहाँ का जो डेटा है वो यूज़ किया जा रहा है टू ऑब्जर्व द आउटर लेयर ऑफ सन। So magnetic field of sun is unique in that unlike many other celestial bodies, it reverses its polarity roughly every 11 years. ठीक है, तो regular observations of sun's magnetic field began in 1967 and so far we have data for period of 1967 to present. तो उससे पहले का डेटा हमारे पास नहीं था। सो एन इंडो रशियन कोलैबोरेशन हैज एडेड टू दिस विद द प्लॉट ऑफ सोलर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 1915 टू 1965। जो सोलर साइकिल्स है ये, वहाँ का डेटा हमें नया मिल रहा है। इंडिया की तरफ से जो है डेटा दिया जा रहा है कोडाई कैनल सोलर ऑब्जर्वेटरी से। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की वो ऑब्जर्वेटरी है। कोडाई कैनल की जो ऑब्जर्वेटरी है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1899 एंड फ्रॉम दैट टाइम वी हैव ऑलमोस्ट फॉर 100 years the observations of sun. Fine. So important feature of this data is multi wavelength observations. ठीक है, तो जो आउटर जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है सन का, दिस इज नोन एज क्रोमोस्फेयर। तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रोमोस्फेयर क्या होता है सन का। तो एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रोमोस्फेयर बोला गया है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल इमेजेस जो है सन के CA2K बैंड या फिर जो इमेज होती है या फिर H अल्फा लाइन से इमेज होती है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसे इमेजेस का उन्होंने स्टडी के लिए यूज़ किया गया डेटा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, रादर क्रोमोस्फेयर इम्पोर्टेंट है। कोडाई कैनल सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल, ये भी इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको ये आ सकता है कि लोकेशंस कहाँ कहाँ है ये इंस्टीट्यूट के, तो उसके बारे में एक जस्ट आपको नोट में मेंशन करके रखना है। फाइन, ओके। सो दीज वेर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर।
सो ट्राई टू टेक इनपुट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन काफ़ी टफ हो गया है। हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर से कैसे 2017, 18, 19 और 20 में इंक्रीजिंग ट्रेंड है डिफ़िकल्टी लेवल का। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के डिटेल में। Yes, we will try to have such kind of approach in our The Hindu analysis from time to time. At the same time, we are also planning to have the prelims examination analysis of this year's paper 2020. Maybe we'll have module wise, or we can have complete 100 question analysis in coming let's say lectures. ठीक है, तो एक दो हफ्ते में हम उसका एनालिसिस अच्छे से देंगे। ठीक है, फाइन। सो फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एडिटोरियल डिस्कशन क्लासेस विच हैव बिकम वेरी मच इसेंशियल, जो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपको डेप्थ में अगर कोई इश्यू अच्छे से पता नहीं है तो आप वो आंसर नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए ईडी लेक्चर्स, एडिटोरियल डिस्कशन जो लेक्चर्स होते हैं, वेर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मेंस रिलेटेड आर्टिकल्स जो होते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट होगा आंसर करेक्ट आने के लिए। So that is done by Ansari sir and team. For more information on that course, you can contact Lukman IAS. Thank you.